लोग अपना इंटरव्यू बोर्ड को अपना नॉलेज नहीं दिखाना है. In February 2018, there was some ordinance and rules was passed first time in India for the banking sector. What was the reforms? So I am not aware about it. धीरे धीरे आपका स्टेमिना और वो ना लो होता जा रहा है. वो क्यों हो रहा है? उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हो आप. May I come in, sir? Please. Yes, please. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Yes, Pradeep, introduce yourself. Sir, my name is Pradeep Kumar. I born and brought up in Delhi, and I completed my schooling from Guru Tegh Bahadur Public School in Delhi. And after that, I pursue graduation from BSc Physical Science from Zakir Hussain Delhi College in year of 2019 and 22. And after that, I started preparation for banking exam, and I currently doing the same. Okay, any family background? And sir, in my family there are 4 members. I have one sibling, and my father is a businessman, and my mother is housewife. You are residents of the Delhi. Yeah. Major contribution of pollution. Major. In this state, Whether the transport or construction. sir, transport. Transport. In my opinion, sir, it is transport. Any other political discussion always will be there in a particular season. Yes, sir. It is due to the pollution. This is the happening. Yes, sir. Which is the area and which is the things. Every year they are telling it has become very poisonous. This one is one, that one, like this one. What is this? Sir, they are only shifting their blames to one another. Hey, what are the things I told you? Which are the particular things? Always became poisonous. This one, lakhs of crores of rupees has been allotted there. But every month, for a particular 1 month, 2 months, 1 month, it will come. Sorry, sir. During the rainy season. Sorry, sir, I am not. Yamuna pollution is there. Na? Rainy season, I told you this is weird. You know. Hint you have given. No problem. What is the major role of RBI? So major role of RBI is to controlling the all banks which are working in this country, Means that is the regulatory body of all banks, and it is a work as in simple word we can say that it can work as a mediator between government and banks. This is a regulatory. Apart from regulatory, any other work is there? Responsibility and work? So they are responsible for the controlling inflation and the circulation of currency, printing of currencies, and many more things which I am not able to recall right now. Giving the license also for the They are, banking? yes sir, they are also giving the license for banks which are capable of doing business in future. Some criteria are there. Yes sir. So what is the major criteria? Sir, for the scheduled commercial bank, there is a major criteria. They want a per capita income of 5 lakh, and I'm not sure per capita. That is not per capita, it is the capital. Capital of 5 lakh, and it is necessary for that bank that they. This is called the bank of the government. Bankers to bank and government bank, bank of the government. This is called central bank. Partnership. What is how many partners are there to say the partnership, minimum and maximum? So minimum it is
2 and maximum it is not limit. No limit. Okay. Then can you tell me the definition of partnership? In which terms? पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? What is it? सर पार्टनरशिप कोई ऐसा काम या कोई ऐसा भी मतलब कोई एक पर्टिकुलर ऐसा काम जो सिंगल पर्सन या तो कैपेबल नहीं है करने के या करना नहीं चाहते हैं, उन पे वर्कलोड ज़्यादा ना पड़े, तो वो कुछ लोगों को अपने साथ शामिल करके वर्कलोड डिवाइड करते हैं और उस पर्टिकुलर वर्क को Welcome to the nutshell. This is an agreement. Partnership is an agreement between the person who has agreed to share the profit of a business, carried on by all acting for one. This is the basic. Companies क्या होते हैं? What is the meaning of company? How many types of companies are there? सर चलिए कोई बात नहीं. What is the reverse repo? So the reverse repo rate is it is a type of interest which is paid by the RBI to the banks, which they lends the money from the banks. They lends From the banks. जो when circumstances will come that banks are RBI is always a lender. Yes sir. Which circumstances will come when the bank will lend to the RBI? Sir, there is one circumstances there when there is a gap of more days between. Can I continue in Hindi? हाँ बोलिए. सर जैसे होता है कि कभी कभी छुट्टियां बहुत ज़्यादा होती है बैंक्स में, और आरबीआई को कहीं ना कहीं ये डर बना रहता है हमेशा कि अगर बैंक्स के पास लिक्विडिटी होगी तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे लोगों को, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा. तो उनसे पैसे कम करने के लिए सर आरबीआई उनको एक कंडीशन देता है कि आपके पास जितना कैपिटल है या अगर कैपिटल ज़्यादा है. से इसका मतलब क्या है? सर छुट्टियाँ सर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 4 दिन की छुट्टियां हैं, तो बैंक्स के पास जितना अमाउंट है अगर वो अपने पास रखेंगे वो सर सेम अमाउंट होगा. अगर वो आरबीआई को दे देते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा सर, बैंक को भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वो जनरेट कर लेंगे. Yes, that is the income generate. Whenever any surplus fund is there from available with the banks, they have to deposit with the. एक चांस है सर बैंक के This पास. is called reverse repo. Okay. In February 2018, there was some ordinance and rules was passed first time in India for the banking sectors. What was that reforms? Sir, I am not aware about it. First time it was introduced. Now it has become very familiar. कि बुजुर्गों को ये देनी है, आपके घर तक जाएगा, छुट्टियों में देनी है. Sir, I am not aware about it. That is the ease. Sorry sir. Ease. 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 This is the reforms. उसमें एक बिल बनाया गया, गवर्नमेंट ने पास किया फरवरी 2018. So all the banks they are compelled to go to the all senior citizen, the door to door banking, चेकबुक प्रोवाइड करना. सर मैंने पढ़ा था ये, लेकिन ये नहीं पता. It is doorstep banking. So many things they are provided. This is called ease. Okay sir. प्रदीप कौन से एरिया में रह रहे हो दिल्ली में? सर नॉर्थ दिल्ली. नॉर्थ दिल्ली में रह रहे हो. मैं भी वहीं रह रहा हूँ. सपोज करो हम दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हुए, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पार्लियामेंट स्ट्रीट के अंदर पोस्टिंग मिल गया. जी सर. ठीक है, मैंने भी सेम तैयारी किया पर मेरे को यहाँ पे जॉब नहीं मिला. मेरे को यूके के किसी बैंक में जॉब मिल गया. जी सर. मैं वहाँ सर्विस कर रहा हूँ, आप यहाँ सर्विस कर रहे हो. एक दिन आता हूँ कनॉट प्लेस में घूमता हुआ, चलो प्रदीप से मिल लेता हूँ कि आके बात करता हूँ, आपकी बैंकिंग क्या है, मेरी बैंकिंग क्या है, आपस में पर्सनल डिस्कस करते हैं. मैं बोलता हूँ ठीक है प्रदीप तुम्हारी बैंकिंग तो बहुत अच्छी है, मेरे को एक अकाउंट खुलवा दो अपने बैंक में. तो आप क्या सजेस्ट करोगे मेरे को? सर मैं नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट को सजेस्ट करूँगा. अगर आप डिफरेंट करेंसी में नोस्ट्रो तो थोड़ा सा अलग हो गया. सेविंग अकाउंट तो सब जनरली सर मैं सेविंग अकाउंट के बारे में बताऊँगा आपको. सेविंग मैं कहता हूँ कि ठीक है सेविंग अकाउंट में कुछ अलग क्राइटेरिया, क्योंकि मेरा स्टेटस मैं तो कहूँगा मैं तो आज की डेट में एनआरआई हूँ कि मैं इंडिया में तो नहीं रह रहा हूँ. सर फिर मैं आपको 2 अकाउंट के बारे में बताऊँगा, एनआरओ एंड एनआरई. एनआरओ स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी एंड एनआरई स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल्स. एनआरओ अकाउंट्स में ये है कि आप विद इन इंडिया
विद इन इंडिया ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन एनआरई अकाउंट्स में आप अब्रॉड्स में भी फंड का ट्रांजैक्शन हो सकता है, और एनआरओ में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब्जेक्ट टू टैक्स होते हैं, आपको उन पे टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका कंसेप्ट मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं मेरे पास क्योंकि मेरे यूके में तो इंटरेस्ट बहुत कम देते हैं, 0.5% देते हैं, 1% देते हैं, आपके यहाँ पे इंटरेस्ट अच्छा दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं करेंसी तो लेके आऊँगा, मैं यूके में हूँ, मेरे को पॉन्ड वहाँ मिल रहे हैं, पर मेरे को वापस भी पॉन्ड में ही चाहिए पैसा। और मेरे को ये सेविंग अकाउंट नहीं रखना है, मेरे को सेविंग अकाउंट की जरूरत, मैं लोकल ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए। मेरे को पैसा भी फॉरेन करेंसी में ही रखना है, और वापस भी जाऊँगा तो मैं फॉरेन करेंसी, मेरे को उसी करेंसी में पैसा वापस चाहिए। मैं पैसे को कन्वर्ट इंडिया में कन्वर्ट नहीं करना चाहूँगा, पर मेरे को चाहिए भी एफडी की शेप में। तो क्या अकाउंट आप सजेस्ट करोगे मेरे को? सर ऐसा कोई अकाउंट आप ही ने बताया, फॉरेन करेंसी बता रहे हैं, हिंट मिल गया। वो सर मैंने आपने नोस्ट्रो अकाउंट नहीं, नोस्ट्रो पर थोड़ा बताऊंगा आपको, नोस्ट्रो वोस्ट्रो क्या होता है। आप एनआरई के लिए अगर कह रहे हो ना, एनआरओ एक एफसीएनआर अकाउंट भी है, मैं उसमें कन्वर्ट करेंसी कन्वर्ट नहीं होती। जो एनआरई है उसमें तो आप रुपीस में कन्वर्ट करके मेरा रुपीस में अकाउंट खोल दोगे, बाद में मैं बाहर लेके जाना चाहूँगा उस डेट को, फिर आप दोबारा से उस करेंसी में कन्वर्ट करोगे, तो कन्वर्शन रिस्क मेरा रहेगा कि बार बार करेंसी रुपीज़ में कन्वर्ट हो रही है, डॉलर में कन्वर्ट हो रही है। पर एफसीएनआर अगर है तो उसी करेंसी में अकाउंट रहेगा, उसी में इंटरेस्ट मिलेगा, मैं उसी करेंसी में वापस ले जाऊँगा पैसा। दैट इज़ एफसीएनआर। ओके सर, ठीक है। और क्योंकि आप 2 बार क्लियर कर चुके हैं, फाइनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अभी आरबीआई के गवर्नर चेंज हुए हैं। यस सर। ठीक है, आपको मालूम होगा उनके नीचे सेकंड पोस्ट क्या होती है आरबीआई में? डिप्टी गवर्नर। कितने डिप्टी गवर्नर हैं 4। हमारे पास? कोई नाम है उनके? माइकल डी पात्रा, हम्म। एम राजेश्वर राव। I'm not sure about second one, but I'm sure about first one, MD Patra. ओके, तो 4 हमारे पास। And the remaining 3 I'm not able to recall right now. ओके, गुड गुड, नो इश्यू नो इश्यू। तो एक एफडीआई क्या होता है? Sir, FDI stand for Foreign Direct Investment. ये फॉरेन का जो फॉरेन कंट्री से जो भी लोग किसी कंपनीज के एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें एज अ मेन मेंबर के तौर पे उन्हें बनाया जाता है। इंडिया को क्या एडवांटेज है एफडीआई में? सर फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट आती है, एक अच्छी खासी अमाउंट में इन्वेस्टमेंट आती है, जिससे हमारी कंपनीज को और बड़े बड़े सेक्टर्स में बहुत अच्छी इस कंपनी को अच्छी फंडिंग मिलती है, अच्छी ग्रोथ होती है। अच्छी अगर फंडिंग मिलती है हमें, तो हम अपना वर्क फोर्स अच्छा कर सकते हैं, हम अपनी क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं। अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करेंगे, अगर आज इंडिया कहीं ना कहीं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करता है, या कोई किसी पर्टिकुलर सिटी या पूरा ऑल ओवर इंडिया को ही एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाता है, तो कहीं ना कहीं सर वर्ल्ड में एक एफडीआई की इम्पोर्टेंस है उसमें। तो रिटर्न में एफडीआई वाले क्या मांगते हैं आपसे? वो आपको इन्वेस्ट तो कर दिया, ऐसा तो नहीं है फ्री में आपको यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, रिटर्न में भी तो उनको कुछ चाहिए। सर रिटर्न के तौर पे सर मैं ज़्यादा तो नहीं जानता इनके बारे में, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि उन्हें एक एज अ मेंबर बना दिया जाता है कंपनी का, जहाँ वो फाइनल डिसीजंस ले सकते हैं कंपनीज के। एक मेरे डिसीजन लेके क्या करना है? मैंने तो पैसा लगा दिया आपकी कंपनी में, सर रिटर्न में क्या दोगे? तो हर एक आदमी कहेगा ना, अगर मैं इंडिया में पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को वापसी तो चाहिए ना कुछ। सर आई एम नॉट श्योर। नो इश्यू सर। आपने प्रदीप नाम है सर का? जी। प्रदीप जी, आपने नोस्ट्रो बोस्ट्रो का जिक्र किया, जी सर। तो बताएं बोस्ट्रो क्या होते हैं नोस्ट्रो बोस्ट्रो? सर नोस्ट्रो अकाउंट वो होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के अकाउंट खुले जाते हैं फॉरेन करेंसीज़ में ही, और बोस्ट्रो अकाउंट वो होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के अकाउंट खुले जाते हैं डोमेस्टिक करेंसी में। अच्छा, एक और भी टर्म होता है इसके संग, 3 का है ये, एक तीसरा टर्म भी है इसमें, उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं अभी। लोरो अकाउंट। दियर अकाउंट विद देम, बोस्ट्रो योर अकाउंट विद देम, विद अस, एंड फर्स्ट का नोस्ट्रो होता है अवर अकाउंट विद यू। इस तरह से ये जो इंटरनेशनल बैंक में सेटलमेंट होता है ना, पैसे का लेन देन जो, तो उसके लिए यूज होते हैं। जब आपको कुछ मालूम है तो यू शुड बी थॉरो विद इट।
ठीक है ना? ओके, अच्छा ये बताओ, आपने एक हॉबी लिखी है इसमें सिंगिंग, यस सर। तो अगर आपने म्यूजिक लिखी होती तो मैं आपसे कुछ ज़्यादा ना पूछता, लेकिन सिंगिंग लिखी है तो किस सिंगर को आप ज़्यादा लाइक करते हो, इंडियन सिंगर को, क्लासिकल या कन्वेंशनल? सर ऐसा कुछ प्रोफेशनल सिंगिंग का नहीं है, जैसे वही है कि मैं सिंगिंग इसलिए पसंद करता हूँ अब खुद के लिए, क्योंकि सर जब मैं लो फील करता हूँ या जब अपसेट रहता हूँ, जब सब चीज़ों से थक जाता हूँ, तो सिंगिंग मेरा एक ऐसा मोड रहता है कि जहाँ मैं रिलैक्स होके अपना मूड ठीक कर अच्छी बात है, सकूँ। बहुत और बढ़िया है। तो दोबारा हियरिंग हुई, सिंगिंग कहाँ हुई? सर एक तरह से जो आप यही है, बता रहे हो तो हियरिंग हुई। एक वही है कि सर एट दैट टाइम जो अच्छा लगता है माइंड को, तो वो एज ए मैं हॉबी मानता हूँ। तो किसी को भी सुन लेते हो आप, मतलब कोई पर्टिकुलर कोई सिंगर? पर्टिकुलर ऐसा नहीं है सर। और कोई हॉबी बताइए अपनी आप, जो आपको पैशन हो आपका। सर कुकिंग मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, कुकिंग, अच्छा, कुछ सालों से कर रहा हूँ और इसको मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। ओके ओके। कलनरी बोलते हैं इसको, मतलब इसमें आर्ट है, ये भी एक तरह से कुकिंग भी। तो आप इसमें कोई कोर्स कर रहे हैं या जैसे यूट्यूब पर देख के कर लेते हैं? नहीं सर, मैं यूट्यूब पे भी नहीं देखता, मैं खुद से ही बनाता हूँ। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं? नहीं, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं, जो घर पे नॉर्मली खाना बनता है वैसे ही बनाता हूँ, घर वालों को खिलाता हूँ और घर वाले अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू। अब ये बताओ, सर ने बात की अभी एफडीआई की, एक और टर्म होता है एफपीआई, क्या होता है एफपीआई? सर एफपीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जहाँ हम एफडीआई में कंपनी के एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं एफपीआई में हम कंपनी के शेयर्स और स्टॉक परचेस करते हैं, जो हम कभी भी विद इन ए टाइम या विद सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब हमारा मन करे हम उसे सेल परचेस करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, इंडियन कंपनी के शेयर्स, उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो लिस्टेड होती हैं? सर सेबी के साथ लिस्टेड होते हैं। कौन से होते हैं इंडेक्स? सॉरी बेंचमार्क इंडेक्स पता है कौन कौन से हैं भारत में? नहीं सर, इसका होगा सेंसेक्स, निफ्टी। सर इनके नाम सुने हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे आप बोल रहे हो कि कंपनी के एसेट्स में, कंपनी के एसेट्स क्या होते हैं? कंपनी के एसेट, मेन एसेट तो सर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं और जो उनका रॉ मटेरियल सब है, ये सब अच्छा, इस टाइप में। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, पेमेंट बैंक्स के बारे में सुना है तुमने? जी सर। अच्छा, तो पेमेंट बैंक्स नॉर्मल बैंक से कैसे डिफरेंट है? सर वो लैंडिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ओके, डिपॉजिट प्रोवाइड करते डिपॉजिट हैं? प्रोवाइड करते हैं। कोई लिमिट है? सर 2 लाख, अच्छा, 2 लाख लिमिटेड है। ठीक। कोई पेमेंट बैंक से नाम बताओ। एयरटेल पेमेंट बैंक, और अभी आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है पेटीएम पेमेंट बैंक पे। ठीक है। अच्छा तुम कौन सा ऐप यूज़ करते हो पेमेंट के लिए? सर आई एम यूजिंग फ़ोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम ने जस्ट अभी, सर एक्चुअली पेटीएम में बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, और मुझे अभी मैंने करंट अफेयर में थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि आरबीआई ने पेटीएम को रिलैक्सेशन दी है कि आप नए कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं। तो तभी तो ये जो डिजिटल पेमेंट बैंक्स वगैरह, इनको कौन रेगुलेट करता है? कोई ऐसी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसको रिपोर्ट करती है? ये आरबीआई को रिपोर्ट करती है। ठीक है। तो फीडबैक? तैयारी अच्छा है, थोड़ा सा टॉपिक बोलते हो, थोड़ा उसके बारे में ना अच्छा नॉलेज हो वही बोलो। नोस्ट्रो वोस्ट्रो आपने यूज कर लिया, नोस्ट्रो वोस्ट्रो बैंक यूज करता है, बैंक अगर बैंक अपना अकाउंट दूसरे बैंक में रखता है। मेरे को एफसीएनआरआई के बारे में पता नहीं था। हाँ, आप देखो ना एनआरई, अगर आपने एनआरई टिक किया है तो एनआरई को क्या क्या फैसिलिटीज इंडिया में मिलती हैं, क्योंकि बाहर के देश में इंटरेस्ट नहीं है, इंडिया में थोड़ा इंटरेस्ट ठीक है, तो लोग यहाँ पे बाहर वाले आके इन्वेस्ट कर देते हैं। टेक्निकल वर्ड होता है ना, रिपेट्रिएशन, दैट इज द वर्ड। जो चाहे तो वापस ले जाता है उसी करेंसी में पैसा। और कंपनी के बारे में इतना आपने इनको बताया, कंपनी की मेन डेफिनेशन ही आपको नहीं है पता है क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सेल, दिस इज द कंपनी लॉ। नहीं अच्छा, तैयारी आपका अच्छा, बढ़िया बट है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आप जो लेवल यूज कर रहे हैं उसके बारे में पता मेंटेन नहीं कर पा रहे हो आप, थोड़ा सा उसे मेंटेन करो। शुरू में आए बड़े कॉन्फिडेंटली बोले, सब कुछ बोले, धीरे धीरे आपका स्टेमिना और वो ना लो होता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? कुछ क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहे हो आप, इसलिए थोड़ा सा ये डेमोलाइज हो रहा है। ऐसा नहीं करना है, नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है? वो अपना इंटरव्यू बोर्ड को अपना नॉलेज नहीं दिखाना है, अपने आपको बोलो ये नहीं मेरे को नोस्ट्रो पता है, मेरे को वो, फिर वो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंस चले जाएंगे, बिल्कुल अलग चले जाएंगे। आप उनको देखिएगा इसका लेवल तो अलग ही है,
फिर क्वेश्चन वैसे चले आप जाएंगे, उसी में जो क्वेश्चन पूछेगा वहीं तक अपने आप को लिमिटेड। अगर आप इंटरव्यू को कुछ बता भी रहे हो ना तो यू शुड बी मास्टर ऑन। हाँ, या तो उस टीवी का पूरा पता होना, वो शब्द आप यूज करो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है इंटरव्यू उसी को पकड़ लेगा आपका। ठीक है ना? आपने कोई भी शब्द यूज कर लिया ना, डिपॉजिट प्रोवाइड करता है, गलत वर्ड बोल दिया आपने, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है, प्रोवाइड 2 लाख का लिमिट नहीं है उसमें, 25 लाख तक की लिमिट है। ठीक है, लोन प्रोवाइड करेगा, डिपॉजिट प्रोवाइड नहीं करता, डिपॉजिट एक्सेप्टेड। फैसिलिटी एक्चुअली मैं बोलने वाला था डिपॉजिट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो हाँ मतलब सर्विस बीच में ये चीजें थोड़ा सा क्लियरिटी का मतलब अभाव लग रहा है थोड़ा सा स्लो बोलो आप, धीरे धीरे क्लैरिटी करके, इतना फास्ट बोलने के चक्कर में आप वर्ड्स खा जा रहे हो। प्रदीप आपके साथ एक वो चीज़ है, जब आपको चीज़ें पता है आप बहुत जल्दी बोलते हैं उसको रिप्लाई, जो चीज़ नहीं पता वहाँ पे आपका फिर एकदम पॉज आ जाता है। तो एक नॉर्मल पेस रखो, पता भी है तो रिलैक्स वो सोच थोड़ा के बोलो। अपना टाइम लेके बोलो। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको नॉलेज तो एक प्रोवर्ब है कि मास्टर ऑफ ऑल एंड वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा मालूम है लेकिन कंप्लीटली नहीं मालूम है, तो उसमें आप जब भी पढ़ें तो बिटवीन द लाइंस पढ़ें, समझें उस चीज़ को। ठीक है ना, ये तरीका होता है इसका, और उसको पूरा फुल्ली ग्रैप्स करके तभी मतलब तैयारी मानी जाती है। थोड़ा थोड़ा अगर आप सब जानेंगे और डीप में नहीं, थोड़ा सा नहीं मालूम होगा तो वहाँ मामला इंटरव्यू में अटक जाएगा आपका। ठीक है, नॉलेज है आप, नॉलेज है, अच्छा एग्जाम 2 बार क्लियर कर चुके हो। सर मैंने अभी RRBPO का इंटरव्यू दिया था। हाँ तो आप इसीलिए आप BBC किस नॉलेज आपको है, सारी चीजें हैं, उसको क्वालिफाई कर लोगे। ये इंटरव्यू में क्या क्या प्रिकॉशन लेना है आपको, वो हम आपको गाइड कर रहे हैं। कभी भी ऐसे शब्द मत यूज करो जो बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, जो ऊपर लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, फिर आप चीज को लेंदी मत करो, फैलाओ मत आप। लिमिटेड ही रहो, जो क्वेश्चन है उसी को लिमिट में रखा। जहाँ आप लिखे ठीक है, होगा नेक्स्ट टाइम आपको बैंक में मिलेंगे हैं, आपका होगा 100%। हो जाएगा। You are- ऑल द बेस्ट।